So good morning friends. Right from beginning अगर हम देखें तो very first we discuss going concern concept. उसमें क्या था? In that case there is in near future there is no intention or there is no necessity to discontinue or to winding up of the business. The business will continue for a long period, indefinite period. So that was what our your going concern, and we record the assets on the basis of going concern concept. ये हमने देखा था joint venture is exception for going concern. Then we discuss cost concept. Cost concept क्या था बेटा? That is where all the assets to be recorded at its actual purchase price, acquisition cost पर ही वो record किया जाएगा, and all future accounting purpose cost will be taken as the basis, like that depreciation. Cost concept के 3 drawback थे. Very first it's comparison. आपके सामने रखता हूँ, ये उसका कंपैरिजन था, ठीक है. 2 पीरियड पे अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. देन दी ऑल असेट्स डू नॉट हैव द एक्विजिशन कॉस्ट लाइक देयर योर डेडिकेटेड मैन फोर्स एम्प्लॉइज, ठीक है. ईमानदार टीम से लॉयल टीम आपको मिलना, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है. सो दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड द वन इज देयर इज इन्फ्लेशनरी ट्रेंड वाला जो था सर, इन्फ्लेशन वाला जो था, दैट due to inflation the assets value increases, but still due to cost concept we are showing at its original cost only. So these are some drawbacks of your cost concept. उसके बाद हमने देखा था realization concept, जिसके अंदर हमने देखा था the assets to be recorded at its cost only, and any change in the value of asset should not be recognized unless it is very sure that that amount is going to realized. ओके, सो असेट आपके पास 7 लाख का है, अब उसकी मार्केट में वैल्यू 10 लाख है, तो 7 लाख की जगह अब उसका मार्केट का वैल्यू 10 लाख हो गया, तो 3 लाख से एप्रिसिएशन हो गया है. सो दिस 3 लाख शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज दिस इज नॉट माई रियलाइज्ड गेन. जब एक्चुअल में रियलाइज होगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. उसके बाद हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है. मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? To earn the revenue what the cost is incurred, that cost is to be recognized in that period only, and some expenses are not related to revenue, some expenses are related to period. So what are the expenses related to that period or expenses incurred to earn the revenue, only that much expenses to be recognized. That is what your matching concept, which leads to development of your automatically accrual concept. और फिर उसके अंदर जो आता था हाँ, उसके अंदर फिर आपका प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह जो है वो इसकी वजह से आ जाता है फिर आगे, ठीक है. देन हमने डिस्कस किया था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. व्हाट आर द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट? दैट इज द बिजनेस लाइफ इज टू बी डिवाइडेड इन अ मीनिंगफुल पीरियड, नॉर्मली 1 year period, and for each period you have to find out the performance, find out the financial result and financial position, so that you can take the informed decision for your future. Got it? So again this leads to the development of your accrual concept. तो there is no sense that for the पूरा जो लाइफ है बिजनेस का, ठीक है, for the entire life if you create only one profit loss balance sheet, there is no sense. It's only a postmortem activity. Then हमने डिस्कस किया था पीरियोडिसिटी के बाद हमने मैचिंग कंसेप्ट हो गया हमारा. हाँ, कॉन्सर्टेशन सर, that is expect the losses, do not expect the gains. So अगर फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी लॉस होने वाला है, then for that loss make the immediate provision, but for expected gain don't recognize unless otherwise it is actually realized. And whenever there are 2 options available, then select that option which will give the lower profit. Playing safe is the approach for your conservatism concept. Then accrual concepts are only for that periods, what are the income or expenses, whether received or receivable, and expenses paid or payable, it is only to be recognized. That is what your accrual concept. और accrual concept में फिर हमने देखते थे, ये भी देखा था, साथ साथ में हमने ज़्यादा हमने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हमने डिस्कस किए थे. बच्चा मैंने इसका एक आपको शॉर्टकट बताया था, बताएंगे क्या था ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? मैंने आपसे कहा था ब्रेक पर जाने से पहले अपने आप को क्या कहिएगा हमेशा. वेरी गुड. सुमित, विनय, बन, यश, वरुण, मानसी, मानिक, अंकिता, गायत्री, विशाखा, सिद्धांत, अभिजीत, कृष्णा, दर्शन, आलिया, रिद्धि, अपने आप को क्या कहिए सर? ग्रेट सीए, द ग्रेट सीए. G stands for going concern, C for consistency and A for accrual. तो इसमें से consistency क्या है सर? Consistency means what are the policy, procedure, method, principles followed in the preparation of financial year are consistent, are followed same year after year. If it is followed year after year, then it is called as a consistency.
गॉट इट? तो अगर आप ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आप ये फॉलो करते हो, ये हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि आप इसको फॉलो कर रहे हो। हाँ, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब जैसे कि कंसिस्टेंसी है, ये पॉइंट मेरा रह गया था शायद से बताना। कंसिस्टेंसी है, हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि दैट यू आर फॉलोइंग योर अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेथड्स जो भी है वो आपके कंसिस्टेंट है, ये हम ऑलरेडी मान के चलते हैं। तो आपको फिर से नोट्स में देने की जरूरत नहीं है कि वी आर फॉलोइंग, वी आर कंसिस्टेंट, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब अगर आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ है, मेथड ऑफ एसेट वैल्यूएशन चेंज हुआ है, ठीक है, तो फिर ये आप कंसिस्टेंट नहीं है उस केस में, और फिर आपको देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। भाई प्रीवियस ईयर हमारी मेथड ये थी, इस साल हमारी ये मेथड ये हो चुकी है, सो फॉर दैट पॉइंट वी आर नॉट कंसिस्टेंट। अगर आप एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं तो सर आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप एक्रूअल फॉलो कर रहे हो, हम ये बट ऑब्वियस मान के चलते कि आप लोग एक्रूअल फॉलो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एक्रूअल फॉलो नहीं करते तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा दैट एक्रूअल इज नॉट फॉलोड एंड दिस कैश सिस्टम इज फॉलोड। और समटाइम कभी कैश और एक्रूअल का दोनों का कॉम्बिनेशन भी किया जाता है, दैट इज वॉज अ हाइब्रिड सिस्टम, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं सर तीनों अजम्पशंस, मुंह फाड़ के बोलिएगा मत, हम ऑलरेडी मानते हैं यू आर फॉलोइंग दैट। यहां तक हम लोग आ चुके थे और अब हम आगे बढ़ते सर। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, मुझे बताइए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड, इसकी हम एंट्री क्या करते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड ₹5,000। सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? सिंपल है सर, इट्स ए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड ₹5,000, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड ₹5,000, तो फिर आपकी एंट्री में फ़र्क आएगा क्या? और बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हाँ बिल्कुल आएगा, और इस केस में फिर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? और इस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी इट इज़ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फ़र्क कहाँ पर आ गया? फ़र्क आ गया सर यहाँ पर, जहाँ हम लोग पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करते थे, अब हम किसको डेबिट करते हैं सर? ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। मतलब जो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, दैट पर्सनल एक्सपेंडिचर वी आर डेबिटिंग टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो हम लोग फॉलो करते हैं, ये जो हम लोग फॉलो करते हैं सर, दिस इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ आवर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। This is nothing but separate entity concept, ठीक है। So in this case what happens, the person who started the business, ठीक है, मान लीजिए सर this is what Mr. A, he started the business, so accounting point of view से, accounting point of view से this businessman and this business are two separate entity। अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अकाउंटिंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से सर बिजनेसमैन ये अलग है और बिजनेस ये अलग है, इसलिए बिजनेसमैन के और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस आपको क्लब नहीं करने हैं। इसलिए ओनर्स के
प्रोप्राइटर के जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसको हम बिजनेस एक्सपेंसेस को नहीं लाते सर, उसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करते हैं. सो व्हाट ही विड्रॉन फॉर दी अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, या फिर उसने बिजनेस में से कुछ गुड्स खुद के पर्पस के लिए यूज कर लिए, दैट वी आर गोइंग टू डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट एज अ ड्रॉइंग. ऊपर से अब ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ए और ए का बिजनेस एक ही होता है, लीगली दोनों एक ही है, अकाउंटिंग में दोनों अलग अलग है. अब यहां पर मिस्टर ए ने बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए दिए. कितने रुपए दिए सर? 5 लाख रुपए दिए एज अ कैपिटल करके. तो बिजनेस के लिए, बिजनेस के बैलेंस शीट में इट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने वो ए को पैसा वापस देना है, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है 5 लाख रुपए. लेकिन मिस्टर ए का अगर हम पर्सनल बैलेंस शीट बनाएंगे, मिस्टर ए का अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो मिस्टर ए ने के हिसाब से वो उसकी क्या है सर? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. कितना? 5 लाख रुपए. तो यहां पर लीगली दोनों एक है सर. अकाउंटिंग पॉइंट से ए इज मेड इन्वेस्टमेंट इन हिज ओन बिजनेस. तो मिस्टर ए के लिए वो असेट है, लेकिन जिस बिजनेस को ये पैसा मिला है सर, उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसा ओनर को वापस करे, बट ऑफकोर्स बाय एडिंग प्रॉफिट और डिडक्टिंग लॉसेस. ठीक है. सो बिजनेस के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है. ये असेट और लायबिलिटी लिखना तब पॉसिबल है जब हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करें. दिस इज नथिंग बट माई सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. सो प्लीज पढ़िएगा इसको. Separate entity concept. As per this concept, every organization is considered to be separate entity from the owner or proprietor. Accountant should treat business as a distinct from its owner. So business अलग है, businessman अलग है. Both are distinct. This concept helps in keeping business affairs free from the influence of personal affairs of owner. So affairs का मतलब वो affairs नहीं सर जो हम लोग स्टार प्लस या कलर चैनल पर देखते हैं. Affairs का मतलब है सर business transactions. This concept helps in keeping business transactions free from the influence of personal affairs, personal transactions of the owner. वही तो मैंने कहा सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ओनर का अगर है तो वो एज ए ड्राइंग करके जाएगा, और अगर वही ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर बिजनेस के लिए है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट होगा. ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा. The concept of separate entity is applicable to all forms of business organization. Due to this concept, it is possible to find out exact performance of business. तो ओनर के अगर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिए तो सर बिजनेस का परफॉर्मेंस आपको गलत दिखेगा. इसलिए ओनर के खर्चे वो अलग इन द हेड ऑफ ड्राइंग एंड दैट इज टू बी डिडक्टेड सेपरेटली फ्रॉम कैपिटल. पर्सनल खर्चे यहां पर लाना नहीं है. Thus brings capital into the business, it will be deemed that business borrowed rupees 10,000 from the proprietor and it is shown as the liability side of balance sheet. Entity concept means that the enterprise is liable to the owner for a capital investment by the owner. यहां पर आप एक छोटा सा एक इस तरह से लिख लीजिएगा. Thus when ओनर, ये 10,000 हटा दीजिए यहाँ से, हाँ ऐसा कर दीजिए, इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा. Thus when owner brings capital into the business, it will be deemed that business has borrowed from the proprietor and it is shown as the liability side of the business in the balance sheet. Entity concept means that the enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner. Is this very clear? ठीक है, चलिए सर आगे. सर अगला जो है इट्स अ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. सर ये तो आप अकाउंटिंग भी इसके ऊपर बेस है. अगर मैं आपसे कहूँ सर एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू फोल्ड इफेक्ट, वन इज अ डेबिट एंड वन इज अ क्रेडिट, तो आप कहेंगे सर ये तो हम जब से अकाउंट में होश संभाला तब से जानते हैं सर. एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग अ टू फोल्ड इफेक्ट, वन इज अ डेबिट वन इज अ क्रेडिट. और सर जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है. और डेबिट कहाँ कहाँ पर होता है सर? डेबिट कहाँ कहाँ पर होता है? डेबिट होता है सर वेन एवर देयर इज एक्सपेंसेस.
क्रेडिट कब होता है सर? वेन एवर देर इज अ इनकम. सो वेन एवर इंक्रीज इन असेट देर इज अ डेबिट. वेन एवर देर इज अ डिक्रीज इन असेट देर इज अ क्रेडिट. वेन एवर इंक्रीज इन अ लाइबिलिटी देर इज अ क्रेडिट. वेन एवर डिक्रीज इन अ लाइबिलिटी देर इज अ डेबिट. सर ये जो है दिस इज व्हाट योर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. मुझे बताइए सर, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर ₹5,000. हम लोग एंट्री क्या करते हैं? वी आर पासिंग द एंट्री एज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000. हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो गई, और हमने कैश दी, मतलब हमारा असेट भी कम हो गया. हमने असेट को क्या किया? क्रेडिट किया. तो असेट को क्रेडिट किया, सो दिस इज व्हाट सर? असेट डिक्रीज हुआ ना यहाँ पर, तो असेट को क्रेडिट हुआ, और क्रेडिटर को पेड किया, मतलब क्रेडिटर भी कम हो गया, तो क्रेडिटर को कम हुआ, तो क्रेडिटर हमने क्या किया? डेबिट किया. सो दैट इज अ लायबिलिटी डिक्रीजेस, तो लायबिलिटी हो गया डेबिट. आर गेटिंग द पॉइंट हियर? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? सी अगला ट्रांजैक्शन आप देखिए. अरे भाई क्लियर है कि सबको? हाँ शाबाश. नंबर 2, लेट्स से सर मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश 1,00,000. तो एंट्री क्या हो जाती है हमारी? इट्स अ मशीनरी अकाउंट डेबिट. मैं भी क्या सिखा रहा हूँ आपको, जो आपको ऑलरेडी आता है. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. अब हमने मशीनरी परचेज की, मतलब असेट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश गई तो उससे क्या हो गया? असेट डिक्रीज हो गया. अब असेट इंक्रीज हो गया तो मशीनरी को डेबिट. सो हियर असेट इंक्रीजेस, उसका डेबिट आया, और हमने कैश दे दी, असेट गया, तो कैश को एक असेट कम हो गया, सो ये आया सर असेट को क्रेडिट. गॉट इट? इज इट? नाउ गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट 10,000 रुपये. एंट्री क्या है? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000. परचेज माई एक्सपेंडिचर. सो एक्सपेंडिचर का क्या होता है? डेबिट. क्या समझाना सर इसके अंदर आपको? और लेकिन अब तो हमने पेमेंट नहीं किया. सर पेमेंट नहीं किया मतलब क्या हुआ? फिर अभी देना बाकी है, मतलब क्या हुआ सर? हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी को क्रेडिट, ये देखो क्रेडिटर्स को क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी को यहाँ पर क्रेडिट. सी दिस इज व्हाट नथिंग बट माई ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. सो सिंपल. According to this concept, every business transaction has dual effect, debit and credit. The total amount debited always equal to the total amount credited. The dual aspect can be expressed by way of a following equation: capital plus liability equal to assets. बैलेंस शीट याद है ना आपको? इधर क्या क्या आता है आपका? कैपिटल एंड ऑल योर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, और ये साइड में आपका असेट्स, और ये अल्टीमेटली आपका टैली होता है ना, मतलब ही कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू योर असेट्स. ठीक है, इसमें और भी पॉइंट्स आगे. एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैज टू इफेक्ट्स एज फॉलोज. इंक्रीज इन वन असेट में लीड्स टू डिक्रीज इन अदर असेट्स. में हमने मशीनरी परचेज की, कैश दी, मशीनरी परचेज की, मशीनरी आ गई लेकिन कैश गई, तो एक असेट बढ़ा, मशीनरी बढ़ा लेकिन कैश पेड कर दी, कैश कम हो गई. सो वन असेट इंक्रीजेस, वन असेट डिक्रीजेस. इंक्रीज इन वन असेट में लीड टू इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी. सर मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी पर ली, उधारी पर ली तो मशीनरी ली तो मशीनरी बढ़ गई, मतलब असेट बढ़ गई, लेकिन सर साथ साथ में देना भी तो बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई. सो इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी. Decrease in one asset may lead to increase in other asset. Decrease in one asset
लीड टू डिक्रीज इन वन असेट. सर अगेन सेम, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी परचेज फॉर कैश, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. अब यहां पर अगर हमने कैश दी तो असेट हमारी कम हो गई, लेकिन साथ साथ हमने मशीनरी ली तो एक असेट बढ़ गई. गॉट इट. एंड डिक्रीज इन वन असेट में लीड टू डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी. पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन वन असेट में लीड टू डिक्रीज इन अदर लायबिलिटी. नाउ पेड टू क्रेडिटर्स, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. क्रेडिटर्स को हमने कैश पेड कर दी, इससे हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा, लेकिन सर साथ साथ में कैश भी कम हो जाएगी. सो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो गई, कैश कम हो गई, असेट कम हो गया. सो डिक्रीज इन लायबिलिटी may lead to decrease in asset also. Got it? And sir, the next is money measurement concept. सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये तो जो थ्योरी का पहला लेक्चर था जिस दिन मैं आपसे फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली टू बी रिकॉर्डेड. गॉट इट. सर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन बट स्टिल ओके सर, यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि व्हाइल वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग फेज में सर वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. और जो ट्रांजैक्शन है और इवेंट्स है, इवेंट में से कौन से, इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स, इन मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है. So we have to do the accounting of only those transactions and events which can be expressed in terms of money. तो ट्रांजैक्शन तो मनी में आता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट सारे इवेंट जो थे वो मनी में एक्सप्रेस नहीं होते हैं. जैसे कि कस्टमर हमारे शॉप पर आया, उसने आके शॉप में देखा, सर ये इवेंट है, हमने शॉप खोला, ये इवेंट है, इसकी एंट्री नहीं हो सकती है. हाँ, हमने कस्टमर को सेल किया, ये ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री हो सकती है. हमारे यहाँ पर आग लग गई, हमारे यहाँ पर आग लग गई, ये इवेंट है, लेकिन उस आग में 10,000 रुपये का नुकसान हुआ. दिस इज व्हाट द इवेंट्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, ये इवेंट है, बुरा इवेंट है, लेकिन मान लीजिए सर जो उस व्यक्ति की जो डेथ हो गई उसके में एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए जिस व्यक्ति की डेथ हो गई वो हमारा कस्टमर था और हमें उससे 2,000 रुपये आना बाकी था, अब उसकी हो गई डेथ. मतलब अब व्यक्ति की डेथ होने की वजह से सर उससे जो 2,000 रुपये हमको आने वाला था, सर हमने वो पैसे छोड़ दिए. अब कौन 2,000 रुपये उसके परिवार को मांगने को जाएगा, और हम क्या कहेंगे, जाने दो, अपने किस्मत का पिछले जन्म का देना था, दे दिया, चुकता हो गया. सो इन दिस केस उस व्यक्ति का मर जाना, उसकी डेथ होना, ये हमारे लिए बैड डेट्स का कारण है. सो द पर्सन, डेटर की डेथ हो गई तो इट इज अ इवेंट इन मॉनेटरी टर्म्स है. आप बात समझ रहे हैं. सो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड ऊपर से सर जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की जो रूलिंग करेंसी है उसमें आपको अकाउंटिंग करना है. सिंपल सी बात है. पढ़ लीजिएगा जरा आप लोग. एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू कैन रेज द क्वेरी. दिस कंसेप्ट implies that accounting recognize and records only those transactions and events which can be expressed in terms of money only. This concept requires that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money be only to be recorded in the books of account. सर जिसको रुपए पैसे में काउंट किया जा सकता है उसी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. Transactions even if they affect result of the business materially are not recorded if they are not convertible in monetary terms. ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर. ट्रांजैक्शन transactions even if they affect the result of the business materially are not recorded if they are not convertible in monetary terms. Transaction and events that cannot be expressed in terms of money are not to be recorded in the business book. सर वही affirmative sentence आपको करके दे रहे हैं. In other words, transaction events which cannot be expressed in terms of money are not recorded in the books of account. For example, talent, hard work of owner, dedication of employee, sincerity of employee, etc., etc., etc. इसका मतलब सर again here we are following the cost concept. ठीक है. Then सर जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, now here चलिए समझो मिस्टर ए का
जो प्रॉफिट है फॉर दी 2019 एंड 2020, मिस्टर ए का जो प्रॉफिट है 2019 में सर उसका प्रॉफिट है बात मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, और 2020 में उसका प्रॉफिट है 25 करोड़ रुपए। जब मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन देता हूं तो आपको इससे क्या लगता है? इससे आपके क्या समझ में आता है? आदेश बंद करो बेटा, वॉइस मिक्स होता है, बंद करो। आवाज की प्रॉब्लम आ रही शायद आपको। क्या अभी भी आ रही है? नाउ क्लियर? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए सर। हाँ, तो अब ये बताइए आप मुझको, दिस ए लिमिटेड, ये जो कंपनी है सर, इसका 2019 का प्रॉफिट 5 करोड़ है और इसका 2020 का प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए है। सो इन दिस केस आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपके माइंड में ए के बिजनेस के प्रति आपके मन में क्या आता है सर? व्हाट डू यू थिंक? सिंपल तरीके से आपके मन में क्या विचार आता है इसके बारे में? भाई इसका पिछले साल का प्रॉफिट 5 करोड़ है और इस साल का प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपके मन में इसके बारे में क्या एक्सप्रेशंस आते हैं? आपको क्या लगता है इसके बिजनेस के बारे में? और बच्चे कहते हैं, सुमित कहता है इट्स अ ग्रोइंग, महन कहता है एक्सेलेंट, अभिजीत ह्यूज ग्रोइंग, मानिक कैपिटल गेन हो गया सर, आलिया कहती है सर ऑन द वे ऑफ सक्सेस स्पीडली, गायत्री की कंपनी ग्रो हो रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ इस कंपनी के शेयर्स के बारे में, व्हाट यू विल डू? विल यू बाय द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी? विल यू सेल द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी? अगर आपके पास सेल, उसको सेल करेंगे। और विल यू होल्ड द शेयर्स? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो क्या करेंगे? सर ऑलरेडी आपके पास कुछ पैसे हैं तो मतलब मुझे बताइए सर, क्या आप इस कंपनी के शेयर्स को लेना चाहेंगे क्या? पहले आंसर ये दीजिएगा। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो क्या आप इस कंपनी के शेयर्स लेना चाहेंगे क्या? ये मेरा सवाल है। सभी बच्चे कह रहे हैं यस। ओके, सो नया आप इसका शेयर परचेज करना चाहेंगे क्योंकि आपको इसके अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँगी इस कंपनी के आपके पास 10,000 शेयर्स है तो क्या आप इस कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहेंगे क्या? Will you want to sell the share of this company? Do you want to sell the shares of this company? No. सर आप इसकी कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचेंगे, मतलब आप इसको होल्ड करेंगे। बिल्कुल सही है सर, क्यों ना करें, क्यों ना करें सर। जो कंपनी 5 करोड़ का प्रॉफिट 25 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दे तो इसका मतलब सर इसकी तो 5 टाइम ग्रोथ हो गई। इसका मतलब सर इसका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, इसके एम्प्लॉयज़ बड़े डेडिकेटेड है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, 5 टाइम ग्रोथ कर गई है। अगले साल अगर डबल भी ग्रोथ कर लेगी तो भी 25 करोड़ का 50 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब आने वाले समय में कंपनी अगर अच्छा ग्रो करेगी, जो इसके हमको आसार दिख रहे हैं, तो सर इस कंपनी हमको डिविडेंड भी ज़्यादा देगी, इस कंपनी का मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो भी बढ़ेगा। तो समझदारी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय करें, पैसा नहीं है तो कम से कम जो शेयर्स अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसे ना बेचें और उसको होल्ड करें, और यही सारे बच्चे कह रहे हैं। बराबर है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ बेटा, कंपनी को पिछले साल 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस साल का 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये जो 25 करोड़ का प्रॉफिट है बेटा, इसके अंदर प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड 22 करोड़ का है, फ्रॉम सेल ऑफ लैंड
22 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ इस साल कंपनी को, उसके अंदर का 22 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी के पास एक पुरानी लैंड थी, वो बेच दी और उसका प्रॉफिट हुआ 22 करोड़ रुपए। अब मेरा आपसे फिर से सेम सवाल है सर, अब आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है? मैन कहता है सर हलकट कंपनी, अब सेल करेंगे शेयर्स। सुमित कहता है चीटर है, अरे नालायक को पलटी मार दिए तुम लोग तो। प्रतीक्षा कहती सर मैं भी अपने शेयर्स को बेचना चाहूंगी। अरे नाना नाना अभी तो कह रहे सर कर्जा करके शेयर्स खरीदेंगे इस कंपनी के, ये लॉस है सर, बुरी बला है सर, लॉस में जा रही कंपनी। आदित्य कहता सर प्रॉफिट डिक्रीज। नालायक आदित्य कौन सा एंगल से प्रॉफिट डिक्रीज है? साले 5 करोड़ का 25 करोड़ हो गया ना, तुमको समझता क्या कुछ? मानिक कहता सर जुड़ गए, बर्बाद हो गए, बकवास कही की। अभिजीत कहता है, वरुण कहता सर कंपनी नालायक है, इसका मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। अरे भाई ऐसा है, अरे भाई ऐसा कैसे कह रहे सर आप? ऐसी गालियां ना दीजिए सर, ऐसा ऐसा शोभा नहीं देता आपको। कंपनी की ग्रोथ है ना बेटा, 5 करोड़ की 25 करोड़ होने, ग्रोथ नहीं है क्या? 5 टाइम ग्रोथ नहीं है क्या? आप तो रिवर्स सर, आप 180 डिग्री पे टर्न हो गए कंप्लीटली। सही है सर आपका कह रहा, अब आपका डिसीजन चेंज हो गया। आप पहले कह रहे थे इस कंपनी के शेयर को हम परचेज करेंगे, अब आप कहेंगे सर परचेज की छोड़िए, जो है उस शेयर को बेच दीजिएगा। मतलब आपका पूरा का पूरा डिसीजन कंप्लीटली चेंज हो गया। व्हाई? क्यों चेंज हो गया? इट इज बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजर, इट इज बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजर। सर जैसे ही आपको इस बात का पता चला कि भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है, नो डाउट जो लैंड सेल करके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रिएट हो गया, लेकिन सर उसको मिला के अगर मेरा 25 करोड़ का प्रॉफिट ही है, जब मेरे सामने आ जाता है तो मेरा सर मेरा सब कुछ चेंज हो जाता है, मेरा इकोनॉमिक डिसीजन बदल जाता है। सो डू रिमेंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 पार्ट होते हैं। वन इज इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वन इज नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो इसके अंदर आपने पूरा तरह से प्रॉपर डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है। डिस्क्लोजर किस चीज़ का करना होगा आपको? वो हर चीज़ का डिस्क्लोजर करना चाहिए जिसकी वजह से किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो सके। सर इकोनॉमिक डिसीजन किसे कहते हैं? अरे भाई अभी आप जो शेयर्स लेने की बात कर रहे थे, आप शेयर्स खरीदने की बात कर रहे थे, अब आप बेचने की बात कर रहे हो, मतलब आपका पैसे से रिलेटेड डिसीजन था ना ये सर। शेयर्स लेना मतलब पैसा लगेगा ना, तो आप पहले जब खरीदना चाहते थे, अब आप बेचने की बात कर रहे हो। सो योर इकोनॉमिक डिसीजन इज गोइंग टू बी चेंज। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल है, जो कि आपके इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करती है, दैट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपरली। कभी कभी डिस्क्लोजर से प्रॉब्लम होता है, कभी कभी नॉन डिस्क्लोजर से प्रॉब्लम होता है। इज दिस वेरी क्लियर? तो जो भी है सर प्रॉपरली डिस्क्लोजर देना चाहिए। समझ में आ गया आपको? और यही हमारा अगला पॉइंट है, फुल डिस्क्लोजर। According to this concept, each and every fact of business shall be fully disclosed in the books of account. Each and every fact of the business shall be fully disclosed. लेकिन सर किस किस चीज का डिस्क्लोजर करें? तो सर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल इंपॉर्टेंट हो, जो कि मटेरियली इंपॉर्टेंट हो। सो विच इंफॉर्मेशन मटेरियल? सर इंफॉर्मेशन मटेरियल वो होती है जिसकी बेसिस के पर आपका इकोनॉमिक डिसीजन चेंज होता है। हो सकता है सर दैट इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन मे बी मटेरियल फॉर मी, मे नॉट बी मटेरियल फॉर यू। ठीक है, सो ये केस टू केस बेसिस पर अलग अलग हो सकता है, बट जिसे भी आप मटेरियल इंफॉर्मेशन समझते हैं उसे आपने डिस्क्लोज करना चाहिए। व्हाट इज अ मटेरियल इज नॉट मेंशन एनीवेयर सर। ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है, ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है, ऐसा मटेरियलिटी का कंसेप्ट नहीं है। मटेरियलिटी मतलब क्या है सर? मटेरियलिटी मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोज करना या ना करने की वजह से आपका इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो सकता है। दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज मटेरियल एंड दैट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। गॉट इट? चलिए सर, चलिए सर अगला कंसेप्ट आ गया मटेरियलिटी कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आ गया सर मटेरियलिटी कंसेप्ट। अभी मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया था।
Any item should be regarded as material if it has impact on the decision making of the user of accounting information. उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल कहा जाएगा जो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है. Therefore, accountant should attach importance to material details and ignore immaterial things. The term materiality is the subjective term. It is on the judgment, common sense and discretion of the accountant that which item is material and which is not. The materiality depends not only upon the amount of the item but also upon the size of business, nature and level of information, level of person making the decision. मुझे बताइए सर, आपके हिसाब से ₹5 लाख इज इट साइजेबल अमाउंट? क्या 5 लाख रुपए आपको एक साइजेबल अमाउंट लगती है? यस और नो? डेफिनेटली द आंसर इज यस सर. आपके लिए, मेरे लिए 5 लाख रुपए बहुत बहुत मैटर करते हैं सर. बहुत सारे लोगों को तो 5 लाख रुपए का एनुअल पैकेज होता है, तो उसके लिए तो ये साल भर की इनकम है. सो 5 लाख इट मैटर्स फॉर यू एंड फॉर मी. बट सर अगर मैं बात करूं मोटा भाई की, मुकेश अंबानी, डू यू थिंक दिस 5 लाख मैटर्स फॉर मुकेश अंबानी? Do you really think sir 5 lakh matters for मुकेश अंबानी? नहीं, माना कि आपकी और मुकेश अंबानी की पहचान नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम सर, आप थोड़ी ना किसी को पहचान दिखाएंगे, लेकिन फिर भी सर आपको क्या लगता है? डेफिनेटली सर. अब मोटा भाई के लिए सर ये 5 लाख रुपए की इस झाड़ की पत्ती सर, समंदर में से लोटा भर पानी निकला. तो मटेरियलिटी क्या है बच्चों? मटेरियलिटी ये साइज ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है. किसी के लिए 5 लाख साल भर का टर्नओवर है और मोटा भाई के लिए 5 लाख रुपए शायद एक दिन का खर्चा भी हो सकता है. गॉट इट? सो मटेरियलिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते. मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन दी साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो. ठीक है. सो what is material, what is immaterial? It is the wisdom, it is the decision of the management and accountant. Okay? और जो भी मटेरियल होगा सर उसका आपको डिस्क्लोजर प्रॉपरली देना चाहिए. सो वही बात यहां पर दी है. द टर्म मटेरियलिटी इज द सब्जेक्टिव टर्म. इट इज ऑन द जजमेंट, कॉमन सेंस, डिस्क्रिशन of the accountant that which item is material and which is not. Materiality depends not only upon the amount but also upon the size of business, nature and level of information, level of person making the decision. Moreover, an item material to one person may be immaterial to another person. Got it? मैन का कहना है सर 5 लाख रुपए मतलब मोटा भाई के लिए क्या है सर? चिल्लर है. बिल्कुल सही है भाई. चलिए सर, अब बताइए सर मैं कंसिस्टेंसी के लिए मैं क्या डिस्कस करूँ आपके साथ में? ये हमने पहले डिस्कस किया था. दैट इज अ ग्रेड सी है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. ग्रेड सी है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि व्हाट आर द मेथड, पॉलिसी, प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स वी फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉलोड इन करंट ईयर ऑल्सो. If it is so, then it is called as consistent. If it is not, it is called as inconsistent. और अगर आपका inconsistent है तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. अगर consistent है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है. पढ़ लीजिएगा सर. One of the qualitative characteristics of accounting data is a comparability. Whether data of the same enterprise over the periods of or data of different enterprise of the same period or both. Consistency किस लिए जरूरी है? अगर मुझे मेरा परफॉर्मेंस मेरे पिछले साल के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है, मेरा मतलब बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस का परफॉर्मेंस, अगर मेरा इस साल का परफॉर्मेंस अगर मेरे पिछले साल के परफॉर्मेंस से अगर कंपेयर करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेथड, पॉलिसी, प्रोसीजर मैंने पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉलो की थी, अगर वही मेथड, पॉलिसी, प्रोसीजर अगर इस साल मैंने फॉलो की है, देन ओनली माई परफॉर्मेंस कैन बी कंपेरेबल. गॉट इट? तो इसके लिए कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली अगर हमारा परफॉर्मेंस किसी दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना है तो भी
वॉट आर दी पॉलिसीज मेथड्स वी आर फॉलोइंग दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट होंगे, तो ही हम लोग परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएंगे. गॉट इट? The concept of consistency is applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable. SLM, WDV, weighted average, FIFO. For example, if company may adopt any several methods of depreciation such as written down value, straight line method, etc. Likewise, there are many methods of valuation of inventory. But following the principle of consistency, it is advisable that the company should follow consistently over the years the same method of depreciation or the same method of valuation of inventory which is chosen. सर जो भी आपको अलाउड है सर, उसमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे that should be consistently followed. But the concept of consistency does not imply non-flexibility as not to allow the introduction of improved method of accounting. सर consistency का मतलब कतई ये नहीं है कि अगर आपने SLM फॉलो किया है, SLM फॉलो किया है, SLM फॉलो किया है, तो फिर आगे जाके आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते. ऐसा कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं होता. कंसिस्टेंसी इज नॉट अ बाइंडिंग कि आपने हमेशा जो एक फॉलो किया तो वो फॉलो करने का, ऐसा नहीं होता है सर. हो सकता है सर आगे चल के समय के साथ में आपको ऐसा लगे भाई इट्स बेटर कि SLM की जगह हम WDV फॉलो कर दे, इट विल गिव मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर. मोर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हमारे बिजनेस का जो पोजीशन देखेगा, जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखेगा, इट विल बी मोर ट्रू एंड फेयर. इन दैट केस यू कैन चेंज फ्रॉम SLM टू WDV. सर आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, ये आपको अलाउड है. इनफैक्ट ये हमने देखा भी है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चेंज. सो चेंज इन अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ठीक है सर, हम लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे थे एंड नाउ वी शिफ्टेड टू FIFO. सर हो सकता है ना, आप चेंज कर सकते हैं ना, FIFO बैन थोड़ी है सर. हाँ वेटेड एवरेज फॉलो करूंगा तो कंसिस्टेंट कहलाऊंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई FIFO फॉलो करने से मेरे बिजनेस का पोजीशन ज़्यादा क्लियर दिखेगा, करेक्ट दिखेगा, तो आई विल शिफ्ट टू FIFO. दिस चेंज इन method of valuation from weighted average to FIFO is called as change in accounting policy. और इस तरह से जब भी आपकी पॉलिसी चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट कंसिस्टेंट, और फिर ऐसे केस में इट इज रिक्वायर्ड टू गिव डिस्क्लोजर. आपने क्लियर उस बात का डिस्क्लोजर अपने स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट के पार्ट में देना चाहिए. क्लियर सबको? सो यहां पर देखिए क्या कहा है आपसे. बट द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट इंप्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग. सर हम लोग रिजिड नहीं है, वी आर फ्लेक्सिबल. ठीक है, सो मेथड को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं. एन एंटरप्राइज शुड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ओनली. हाँ ये जो पॉलिसी चेंज करना है SLM का, WDV, वेटेड एवरेज का, FIFO का, ये कब कर सकते हैं सर? इसके कुछ रूल्स हैं. To bring the books of accounts in accordance with the issued accounting standards. अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया उस AS के अंदर आपको दिया गया कि नहीं आपने ये नहीं, आपने यही मेथड फॉलो करना है, तो यू विल हैव टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इफ देयर इज अ चेंज इन अ लॉ, सर देश में कोई कानून बन गया और उसने कहा कि नहीं आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, देन तो सर आपको जो अगर दूसरा कोई मेथड पहले फॉलो कर रहे हो और अगर लॉ बन गया उसने कहा कि आपको ये मेथड फॉलो करना है, तो फिर फॉरगेट सर, आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा to comply with the provisions of law. So क्या था यहाँ पर? Comply with the provisions of law, comply with the accounting standards, and third sir management opinion. When under changed circumstances, it is felt that new method will reflect more true and fair picture in the financial statement. मतलब पहले दो जो है ना सर, ये आपको कंपलसरी है. ठीक है, और ये जो है सर ये मैनेजमेंट का ओपिनियन है. देखिए आप अगर कोई मेथड चेंज करें SLM से WDV या WDV से SLM, ऐसा कब कर सकते हैं? 3 कारण है सर. नंबर 1, या तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया जिसके अंदर दिया कि ऐसा चेंज कर लो, या फिर देश में कानून बन गया, उसने कहा कि आपको यही मेथड फॉलो करनी होगी, और हम लोग अगर वो मेथड पहले से फॉलो नहीं कर रहे तो वो बदलाव लाना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए हो गया मैंडेटरी.
तीसरा केस है सर, मैनेजमेंट को खुद को ऐसा लगता है कि बाय चेंज इन मेथड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल शो द मोर ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस। गॉट इट? अगर आपको याद होगा तो सर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के वहां पर ये 3 कारण लिखे हुए हैं, बाद में नोटबुक जरूर चेक कर लेना, ठीक है। सर ये हो गए हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और यहां से आगे आ गया सर हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। तो बेटा देखो बेसिकली आपको एग्जाम के अंदर ये जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए ना अब तक, कितने हो गए, अगर मैं नंबर्स लगा दूं यहां पर पहले से, तो गोइंग कंसर्न, दिस कॉस्ट कंसेप्ट, realization concept, conservatism concept, periodicity concept, matching concept, accrual, separate entity, dual aspect, money measurement, full disclosure, materiality, कंसिस्टेंसी। ये 13 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है। 13 में से किसी एक पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पॉसिबल है। जितना नोट्स में दिया है सर उतना ही पढ़िए, ठीक है। यहाँ से आगे इसको कम से कम 2-3 बार आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये सब मिलाकर मेरे स्क्रीन पर मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा रखता हूँ तो पेजेस बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, आपको नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा दिखते हैं। आपके इसमें सब मिला के 4 या 5 पेजेस है ये सब मिलाकर, और डेफिनेटली 4 मार्क का इसके ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल है, या फिर ट्रू और फॉल्स में कहीं पर भी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन भी पॉसिबल है। ट्रू और फॉल्स विद रीजन में आता है फिर, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते सर। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस वी ऑलरेडी डिड दिस, एक बार पढ़ लेते सर। नोट AS1, that is Accounting Standard 1. Disclosure of accounting policy issued by ICAI states that the following are the fundamental accounting assumptions: going concern, accrual and consistency. इसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए फिर से मैं बार बार उसको डिस्कस नहीं करता हूँ। These 3 concepts are so fundamental that their acceptance and use are assumed in the preparation of financial statement. ये हम तो मान के ही चलते हैं। If above fundamental accounting assumptions are not followed, बच्चा क्या दिया है? Not followed, the fact should be disclosed clearly. अगर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्लोज करो, मतलब सर फॉलो किया है तो शांत रहो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विथ रीजन। क्लियर सबको? और सर आगे का जो है सर बिल्कुल टाइम पास वाली बात है, मस्त मजे से पढ़ने का, 1 बार 2 बार पढ़ने का, मस्त रहने का, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें सर वही फिर से बातें आने वाली है जो अब तक मैं करते आया हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या गुणधर्म उसके अंदर होना चाहिए सर, क्या क्या उसके अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर, क्या अपेक्षाएं हमें उससे होती है। सो क्या दिया सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड टू कन्वे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। सारे पॉलिटिकल आंसर्स है, ठीक है। These statements should present true and fair views of position of the business. Qualitative characters which make financial statement meaningful are explained below. सर कौन से हैं सर? Qualitative characteristics मतलब क्या है सर? Understandable। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। क्या दिया है? An essential quality of the information provided in the financial statement is that it must be readily understandable by the users. But this doesn't mean information which is relatively complex and not easily understandable should not include even if it is relevant information. वो कह रहे सर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना इजीली समझेबल चाहिए सर, इजीली समझ में आना चाहिए। हाँ, लेकिन इजीली समझ में आने के चक्कर में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि उसको देना नहीं, उसको फिर भी आपको देना ही है। मुझे एक बात बताइए भला सच में हम लोग जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट
आप सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं सर, 11th-12th कॉमर्स के, सीए फाउंडेशन के अंदर आपने पूरा अकाउंटेंसी सीखा है। ईमानदारी से बताइए सर कि समझो आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा घर पे, कि ना एक अपने हिसाब से एक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाइएगा और बैलेंस शीट रखिए बनाइएगा, ठीक है, और अपने मम्मी को दिखाइएगा। हाँ, मम्मी मतलब ऐसे किसी भी व्यक्ति को सर जो कॉमर्स का नहीं है, ठीक है। चलिए सर, आपका कोई एक साइंस का जो दोस्त होगा ना सर, जो साइंस कर रहा है, एक अपने उस दोस्त को दिखाइएगा, उसका कहना बेटा देख मैंने एक बहुत अच्छा सा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाया हुआ है, और मुझे सच बताइए सर, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए सर, क्या उसको सच में समझेगा क्या कि व्हाट इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज़ अ नेट प्रॉफिट, वाई ड्राइंग इज डिडक्टेड, वाई नेट प्रॉफिट इज एडेड, सच में उसको समझता है क्या? आप मुझको बताइए सर, डू यू रियली थिंक क्या उसको समझता है क्या? सर आपकी मेरी बात छोड़ दीजिए सर, हम तो पैदा इसलिए हुए कि हम लोग ये बनाए और लोगों को समझाए। डू यू रियली थिंक ये समझ में आता है? मालिक कहता है सर आपने तो आज तो फंडामेंटल को ही हिला दिया सर, इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं सर। सुमित कहता है नो सर, शाइनिंग मारने में काम आएगा उसके सामने। हाँ ये तो है, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट चिपका देने का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जीपी रेशो, हमारा एनपी रेशो, हमारा ये डेप्ट इक्विटी रेशो ये है, हमारा टर्नओवर रेशो, ऐसा वैसा फटाफट बोल देने का सर, पसीना हो जाए सामने वाला, बट उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए सर? सिंप्लीफाइड मेथड में होना चाहिए, और ये हमारे देश के कानून को भी समझ में आ गया सर। इसीलिए 2013 में हमारा जो कंपनी एक्ट है, उस कंपनी एक्ट के अंदर अब एक सिंपल बात करो, हम लोग ना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बड़ी फनी चीज करते हैं सर। वेजेस ट्रेडिंग को हम लोग लेते हैं, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस को लेते हैं, और इसमें बड़ा मिठा सा प्यारा सा कारण देते हैं, वेजेस इज माई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इज माई इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एक आम जनता के लिए, एक कॉमन मैन के लिए सर आप वर्कर को दे या आप एम्प्लॉय को दे सर, आप उसको वेजेस कहे, आप उसको सैलरी कहे, उसके हिसाब से सर यू आर सिंपली मेकिंग पेमेंट टू योर एम्प्लॉय। आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहिए, इनडायरेक्ट कह दीजिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए आपने आपके एम्प्लॉयज को पैसे दिए, ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो फिर इसका आप इस तरह से पोस्टमार्टम काई को करते रहे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट काई को बोलते सर? आप समझे मेरी बात को। इसीलिए कंपनी एक्ट 2013 जब अमेंडमेंट हुआ तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जुड़ा दिया। पहले तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करना इसकी गाइडलाइन थी। आई एम नॉट सेइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, आई एम सेइंग ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी एक्ट कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, लेकिन 2013 में सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा फॉर्मेट हटा दिया और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह स्टेटमेंट ऑफ इनकम लाया और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लाया सर। सिंपली हम जो टी फॉर्मेट बनाते हैं सर, टी फॉर्मेट, एक्सपेंडिचर इनकम जो लिखते हैं ना, वो गायब कर दिया, स्टेप वाइज लाया सर। ये हमारा रेवेन्यू, ये हमारे एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंसेस, ये हमारा प्रॉफिट, बात खत्म। दे आर मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडिंग, ईजी बनाइए सर, थोड़ा सिंप्लीफाइड कीजिएगा। ये क्या लेफ्ट साइड राइट साइड जीपी कैरी डाउन ब्रॉड, ये क्या टाइम पास लगा रखा है? सो मेक इट ईजिली अंडरस्टैंडेबल, ये बात है सर। सर ये कंपनी एक्ट का जो बना हुआ स्टेटमेंट ऑफ इनकम हमको कब देखने को मिलेगा? अरे देखने को मिलेगा ना, इंटर में बैठेंगे ना हम लोग साथ में, मिल बैठेंगे 3 यार साथ में, आप मैं और अकाउंटेंसी, है ना। इंटर में बैठना है साथ में, ध्यान रखना आप लोग, भागना नहीं है। चलिए सर, रिलेवेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट कंटेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. Information becomes relevant and material if its omission or misstatement could influence the decision of users of accounting information. मतलब सर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इट मस्ट बी डिस्क्लोज प्रॉपरली, ठीक है। और कौन सी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी चाहिए सर? जो कि मटेरियल हो, ठीक है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी. Information is useful only if it is reliable. Information is said to be reliable when it is reliable from material error and bias. The reliable information means the information on which person can depend or rely. सर सिंपल सी बात है। रिलायबिलिटी मतलब क्या है सर? आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर के जो फिगर्स हैं वो एक्चुअल फिगर्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होने चाहिए। जो आपका
लेजर सिस्टम है सर, उसी से आपका ट्रायल बैलेंस और उसी से आपका अगर प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना है, देन ओनली वी कैन से दीज फिगर्स आर रिलायबल, ऑथेंटिक। सर इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द सत्यम कंपनी। बी रामालिंगा राजू was the chairman of that Satyam. सत्यम कंपनी ने क्या किया था एंड हाउ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और नॉट, ये आप चेक कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं सर क्या किया। सत्यम कंपनी की एक मोडस ऑपरेंडी थी कि उन्होंने एक एफडी कर दी सर 10 करोड़ रुपए की। ये एफडी करा दी उन्होंने कहां पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 करोड़ रुपए दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको फॉर एग्जांपल ले रहा हूं सर, बैंक का नाम मुझको पता नहीं। तो बैंक के पास एफडी करा दी, तो बैंक ने इनको एफडी की रिसीट दे दी सर, एफडी सर्टिफिकेट कहते उसको, ठीक है। अब एफडी सर्टिफिकेट आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद सत्यम क्या करता था, एसबीआई को कहता था कि अब वो एफडी सर्टिफिकेट वी लॉस्ट, हमसे मिसप्लेस हो गया, कृपया करके डुप्लीकेट इशू कीजिएगा। हालांकि इनसे मिसप्लेस नहीं हुआ था। फिर एसबीआई क्या करती है, एसबीआई इनको एक नया सर्टिफिकेट बना के देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सत्यम के पास 2 सर्टिफिकेट हो गए, एक जो एक्चुअली मिसप्लेस हुआ ही नहीं है वो, और एक जो दूसरा आया एसबीआई से। तो इनके पास क्या हो गया सर, 2 सर्टिफिकेट हो गए, 2 एफडी सर्टिफिकेट। फिर ये क्या करने के, पहला सर्टिफिकेट वैसा रखने का, और जो दूसरा सर्टिफिकेट आया था वो एफडी को मैच्योर करके फिर से और एक एफडी करने की। कहां पर? दूसरे बैंक में सर, यूनियन बैंक में एफडी करने की। फिर से कितने की? 10 करोड़ की। फिर आपके पास एक एसबीआई का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और एक यूनियन बैंक का फिर से एक नया सर्टिफिकेट आ गया 10 करोड़ का। आपकी एक्चुअल में वास्तव में आपकी एफडी 10 करोड़ की है, लेकिन आपके पास एसबीआई का भी 10 करोड़ का सर्टिफिकेट है, यूनियन बैंक का भी सर्टिफिकेट है। अब क्या करने का, फिर से यूनियन बैंक को बोलने का कि हमारा एफडी सर्टिफिकेट लॉस हो गया। फिर यूनियन बैंक आपको नया सर्टिफिकेट इशू करेगी। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 सर्टिफिकेट हो जाएंगे। फिर यूनियन बैंक को जो नया सर्टिफिकेट आया उसको मैच्योर करने का, और वहां से जो पैसे आएंगे वो पैसे लेके तीसरे बैंक में एफडी करने की। फिर जब तीसरे बैंक में जाएंगे तब तक आपका एसबीआई का एक सर्टिफिकेट, यूनियन बैंक का एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास है, और फिर तीसरे बैंक में एफडी करके वहां से फिर एक सर्टिफिकेट आएगा। मतलब आपके पास एफडी के 3 सर्टिफिकेट हो गए सर। करते करते सर फिगर पहुंच गई 500 करोड़ तक, और एक्चुअल में एफडी कितने की है, 10 करोड़ की है, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट कितने के सर, 500 करोड़ के है। और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे बताइए सर, अगर हम बैंक में असेट साइड में हम इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पर एफडी की 500 करोड़ की, और कंपनी ने क्या किया सर, ऑडिटर को भी उल्लू बना दिया। यहाँ पर ऑडिटर के भी काम था कि उस बात को चेक करे, ठीक है। ऑडिटर ने देखा हाँ यार सर्टिफिकेट तो सारे हैं, यहाँ पर 500 करोड़ के सर्टिफिकेट है। ऑडिटर ने सर इस फिगर को सर्टिफाई कर दिया, और इस बात को ऑडिटर के सिग्नेचर को लोग मानते सर, सीए के सिग्नेचर को लोग एक्सेप्ट करते। रामालिंगा राजू क्या कहता है सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वहां पर हस्ताक्षर करता है, साइन करता है, तो उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। डू यू थिंक सर दिस 500 करोड़ का इंफॉर्मेशन, डू यू थिंक सर इज इट रिलायबल? क्या सर ये एक्चुअली रिलायबल था? नो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलायबल। मतलब क्या है सर, जो फिगर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो एक्चुअली आपके बुक्स अकाउंट में होने चाहिए, और बुक्स अकाउंट में सर करेक्ट जो ट्रांजैक्शन वही होगा सर। गॉट इट? सो और एक्चुअली ये जो सत्यम है, सत्यम कंपनी ने बहुत सारा फंड्स है ना यहाँ से निकाल कर एक दूसरी कंपनी में डाइवर्ट किया था, एंड दैट कंपनी वॉज माइटास। सत्यम का उल्टा। इट वॉज अ माइटास, ठीक है। एनीवे सर, कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेटिवली मतलब क्या है सर, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इट मस्ट बी कंपेरेबल विथ योर own financial statement of the previous year, and your financial statement must be comparable with the other organization's financial statement. और comparable कब होगा? If you are following consistency, then only it is comparable. So again this is one of the qualitative characteristics required.
Financial statement must be comparable with the statement of last year of the company and with the financial statement of same year with other competitive organization. By comparison, it is possible to find out the trends of past performance as well as the decision about the future can be taken. Simple है sir. AS1 makes it mandatory to disclose accounting policies followed so as to facilitate inter-firm comparison. जाने दीजिए सर, AS1 अभी आपका एप्लीकेबल नहीं है, जैसे इसको पढ़ के रहा दिमाग में ठीक नहीं रहा छोड़ दीजिएगा. सर मटेरियलिटी आपके इसमें क्या होना चाहिए सर, मटेरियलिटी होनी चाहिए, मतलब जो कुछ भी मटेरियल है विच कैन अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग, ऑल दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज. सो मटेरियलिटी सर, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट शैल बी मटेरियल. फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये उसके अंदर होना चाहिए. सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हाँ सर ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द सब्सटेंस ओवर फॉर्म? लेट्स से सर आपने एक मशीनरी परचेज की. सर मशीनरी बड़े काम में आती है आपको समझाने के लिए. सर आपने मशीनरी परचेज की से 4 रुपीज 10 लाख, उसका लाइफ फिर से 10 ईयर, सो ऑटोमेटिकली सर डेप्रिसिएशन इज रुपीज 1 लाख. सो यू विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, you will provide depreciation, no doubt. Now क्योंकि मशीन आप यूज करें सर, यू आर द ओनर ऑफ द मशीन, सो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, इस बात में कोई डाउट नहीं है. फिक्स असेट इज द एसेट हेल्ड बाय बिजनेस, ओनरशिप आपकी अपनी होनी चाहिए, हेल्ड बाय बिजनेस एंड विच इज हेल्ड फॉर जनरेटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज माई असेट. असेट को हम बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं? When it is owned by business, आपकी अपनी होगी तब. अब मान लीजिए सर हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, सो हमने क्या किया, ये मशीनरी हमने हायर परचेज पे परचेज की. हायर परचेज पे ये जो 10 लाख की मशीन है ये हमने क्या की सर, ये हमने परचेज की. तो इसके अंदर क्या होता है, हायर परचेज के अंदर आपको पहले डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉलमेंट पर ली बच्चों. आपने समझो आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट पेड कर दिया और बाकी के जो 8 लाख रुपए हैं ये आप पेड करेंगे इंस्टॉलमेंट्स में. हालांकि ये जो इंस्टॉलमेंट होंगे इसके अंदर आपको फिर इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा एंड दैट मच अमाउंट यू विल हैव टू पे. बट इस केस में फिर आपको समय भी तो मिलता है ना पेड करने के लिए, 3 साल 4 साल 5 साल का आपको पीरियड दिया जाएगा. अंडर दिस हायर परचेज व्हाट हैपन्स, ओनरशिप जो होती है, ओनरशिप जो होती है एसेट की, ट्रांसफर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, ओनली ऑन पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, तब जाके सर ओनरशिप मिलती है. अब मेरी बात समझ रहे सर? हायर परचेज के अंदर अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो उसका पोजीशन आपको मिल जाता है, मशीनरी का पोजीशन आपको मिल जाएगा सर. आप मशीनरी यूज करना भी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उसकी एक्चुअली ओनरशिप, टाइटल, प्रॉपर्टी इन द असेट यू विल गेट व्हेन यू विल पे ऑल इंस्टॉलमेंट. सर जब तक आप इसका आखिरी इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करते तब तक आप इसके लीगल ओनर नहीं है. अब बात समझ रहे मेरी? ओनरशिप कब मिलेगी आपको? पोजीशन मिल जाएगा. ओनरशिप कब मिलेगी? व्हेन यू विल पे लास्ट इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पेड करेंगे सर? मे बी 5 साल के बाद. ये जो सारे इंस्टॉलमेंट है ये 5 ईयर्स में आप पेड करेंगे. सो 5 साल के बाद आप बनेंगे ओनर. माई क्वेश्चन टू यू, ये जो हमारी एसेट है सर 10 लाख की, क्या इन अ फर्स्ट ईयर कैन आई शो दिस मशीनरी एज माई असेट? ये मेरा आपसे सवाल है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है सर? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये मेरी एसेट है और क्या मैं इसको बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं? देखिए सर, पहले 10 लाख की अगर आपने नगद 10 लाख रुपए दिए और अगर आपने एसेट खरीद ली तो वो आपके बैलेंस शीट में आएगा, इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है.
लेकिन यहाँ अब तक ओनरशिप नहीं आई है, तो क्या ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा क्या? और सवाल ये सर, अगर बैलेंस शीट में आएगा क्या और क्या आई प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, ये मेरा सवाल है आपसे। क्या ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा क्या? सभी बच्चे कह रहे हैं नहीं सर नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। आप क्या देख रहे हैं सर? यहाँ पर आप देख रहे हैं सर इसका लीगल फॉर्म। आप क्या देख रहे हैं सर? इसका लीगल फॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि एक मिनट, अरे भाई चलना, हाँ सर आप देख रहे हैं इसका लीगल फॉर्म। लेकिन सर एक ध्यान रखिएगा, हमने ये हायर परचेज पर सिर्फ इसलिए लिया है, और हाँ एक बात है, हायर परचेज के अंदर अगर हमने सभी इंस्टॉलमेंट्स पेड नहीं किए तो उसके इसमें जो जिससे हमने खरीदा है हायर परचेज पर, उसको अथॉरिटी होती है कि वो आके सर आपके गुड्स को रीपरचेज कर सकता है, वो आपके मशीन को वापस ले जा सकता है। तो आपने कई बार देखा होगा ना सर, इसकी उसकी गाड़ी फाइनेंस वाले उठा के लेके गए। सर ऐसे कैसे उठा के लेके गए? क्योंकि सर वो गाड़ी हायर परचेज पे ली हुई थी, इसलिए फाइनेंस वाले उस गाड़ी को उठा के लेके गए, बराबर है। तो जो आपने कहा सर ये हमारे बैलेंस शीट एसेट पे नहीं आएगा, इसका मतलब सर यू आर कंसिडरिंग इट्स ए लीगल फॉर्म। मुझे एक बात बताइए बेटा, हमने ये एसेट जो है, ये मशीनरी जो है, ये हमने हायर परचेज पर सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि वी हैव सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी। इस वक्त हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमको इनकम होने के पूरे चांसेस है, होने वाला है सर, ठीक है। हम कोई बिजनेस बंद थोड़ी ना कर रहे, इट्स अ गोइंग कंसर्न। इसलिए आने वाले इस समय में हम ये जो भी पैसा हमने लिया ये हम पेड कर देंगे। मुझे एक बात बताइए, जब हमने ये हायर परचेज पे ली तो बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है? क्या हम रियल में ऐसा चाहते हैं क्या कि 2 लाख रुपए आज भर देंगे, फिर 2-3 इंस्टॉलमेंट भर देंगे और उसके बाद हम भरेंगे इतने पैसे? इज इट माई इंटेंशन? और इज माई इंटेंशन दैट ओके सर अभी पैसा नहीं है, लेकिन आपके पैसे इंस्टॉलमेंट भर दूंगा एंड फाइनली आई विल पे ऑल इंस्टॉलमेंट? आप मुझे आंसर से, मैं आपसे 2 सवाल कर रहा हूं। क्या मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आज डाउन पेमेंट भर दूंगा, अगले 2-3 इंस्टॉलमेंट भर दूंगा, पूरे नहीं भर दूंगा एंड बाद में मशीन गई तो गई? क्या ये मेरा इंटेंशन है? या फिर मैं सच में सर मैं सारे इंस्टॉलमेंट्स भर दूंगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट आई विल पे ऑल द इंस्टॉलमेंट्स एंड आई विल बी द ओनर ऑफ दैट मशीन? फर्स्ट और सेकंड सर मेरा इंटेंशन क्या है? आप मुझे आंसर करेंगे 1 और 2। आप मेरे आंसर करेंगे सर यस करेक्ट। ऑल स्टूडेंट सेइंग सर हमारा कतई ये इंटेंशन नहीं है कि हम सिर्फ आज 2 लाख का डाउन पेमेंट भर दें, बाद में और 2-3 लाख 4 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट भर दें और बाद में गए पैसे नहीं है जाओ लेके मशीनरी। ऐसा हमारा इंटेंशन कतई नहीं है। हम क्लियर चाहते हैं कि ये मशीन को हम यूज करेंगे, आपके सारे इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे। इसका मतलब टुडे आई एम नॉट ओनर बट आई विल बी द ओनर। आज मेरे पास ओनर नहीं है सर, आज मैं ओनर नहीं हूं, बट आई विल बी द ओनर। So the legal form of the case, I am not the owner, but substance of the case, I will be the owner. और अकाउंट में substance मैटर करता है, legal form नहीं सर। Try to understand सर, substance क्या है इस केस का? इस केस का substance ये है कि सर मैं ओनर नहीं हूं, I am not the owner सर, legal I am not owner, but the substance of the case, I will be the owner सर। आज मेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, आपके पैसे दूंगा, आई विल बी द ओनर। सो इंपॉर्टेंट इज व्हाट सर? सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट है। अकाउंट के लिए सर लीगल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, अकाउंट के लिए सर सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है। और इस केस में असेट बैलेंस शीट में आएगी, भले ही वो हमारी आज ओनरशिप ना हो, लेकिन फिर भी असेट बैलेंस शीट में आएगी, बिकॉज द सब्सटेंस ऑफ द केस, लीगल फॉर्म आई एम नॉट द ओनर, सब्सटेंस आई विल बी द ओनर एंड आई विल बी द ओनर इज अ सब्सटेंस, और सब्सटेंस के आधार पर अकाउंटिंग होता है। इसलिए ये एसेट हम ओनर नहीं है, फिर भी ये एसेट हमारे बैलेंस शीट में आएगी एंड स्टिल वी कैन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन दो वी आर नॉट द ओनर। सर एंटिटी कंसेप्ट में हमने कहा था लीगली बिजनेस एंड बिजनेस आर सेम, अकाउंटिंग के लिए दोनों अलग है, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। सो लीगल फॉर्म हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर करता है सब्सटेंस। तो जहां पर सब्सटेंस और लीगल फॉर्म की बात आएगी तो अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के आधार पर होगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये ऐसा सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला पॉइंट। बताइए सोचिए, समझ में आ गया मैंने क्या कहा आपसे? क्या ये चीज आपको समझ में आ गई जो मैंने आपसे कहा?
सर अदरवाइज आप इसको आधे घंटे तक पढ़ेंगे तो नहीं समझेगा, लेकिन क्या अब आपको समझा? इज दिस वेरी क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे, सारे मेरे एकलव्य अंगूठा लगा रहे हैं यहाँ पर। सो अकाउंटिंग के लिए सर सब्सटेंस मैटर करता है। सो अकाउंटिंग शुड बी नॉट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इट्स सब्सटेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए सर यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, पढ़िए इस बात को, अब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड according to economic reality and not merely on the basis of their legal form. So legal form मत देखिए सर, economic reality है कि हम इसके ओनर बनने वाले हैं, आज नहीं तो कल सर, मशीन हमारी होंगी, ठीक है। यहां पर लिख दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल हायर परचेस, फॉर एग्जाम्पल असेट परचेस्ड ऑन हायर परचेस। वैसे एक सिमिलर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ लेना बाद में, ठीक है। वरुण ने कहा सर एकदम क्रिस्टल क्लियर, पानी जैसा एकदम क्लियर सर, वेरी गुड। न्यूट्रलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। द प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट come cross uncertainties. चलो सिंपल लाइन में काम कीजिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, ओके सर। बायस व्यू मतलब क्या होता है? बायस व्यू मतलब पहले से ही मन बना के रखना किसी चीज़ के लिए। जैसे कि इस वक्त आपका मन बना हुआ है कि आपका फाउंडेशन का जो पेपर आएगा वो बड़ा डिफिकल्ट होगा, ये हमेशा बच्चों का परसेप्शन होता है, ये हमेशा बच्चों का बायस व्यू है अपने ICAI के प्रति। हालांकि फैक्ट ये है कि पेपर बहुत सिंपल होता है, तो पहले से बायस व्यू मत रखिएगा, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, ठीक है, सो आप पहले से कुछ मन में बना के ना रखिएगा, गॉट इट। Next, prudence. So prudence is nothing but conservatism. Prudence is nothing but your conservatism. ठीक है, मतलब सर expect the losses, do not expect the gain. It is a degree of caution to be taken. ये रिपीट हो गया यहाँ पर। It is a degree of caution to be taken for taking judgment about the future uncertainties and estimates. In other words, prudence is estimate required under conditions of uncertainties. It takes precaution that assets and income are not overstated. Assets and incomes are not overstated and liabilities and expenses are not understated, but it does not allow creation of secret reserves. Estimate about bad debt, useful life of asset and provisions, etc. If the prudence is not followed properly, then financial statement will lose reliability. This part is important for you. ठीक है सर। इस सिंपल क्या करें सर, असेट्स और इनकम को ज्यादा मत दिखाएगा अननेसेसरीली, ठीक है। अनरीजनेबल मत दिखाना सर, असेट्स और इनकम को ज्यादा दिखाऊंगा तो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड। लाइबिलिटीज और एक्सपेंस अगर मैं कम दिखाऊंगा तो मतलब ही मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ जो मेरा है नहीं है, और जो है नहीं है सर वो मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट माई सीक्रेट रिजर्व, ओके। बोगस प्रॉफिट दिखाना इज कॉल्ड एज अ सीक्रेट रिजर्व। बोगस प्रॉफिट दिखाना सर, इट इज कॉल्ड एज अ सीक्रेट रिजर्व। और इसी को इन आर टेक्निकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज अ विंडो ड्रेसिंग। It is called as window dressing. सर विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? खिड़की में रह के कपड़े बदलना नहीं होता नालायक को। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है सर ऐसी फैंसी चीज दिखाना सर, ऐसा कुछ दिखाना जो कि एक्चुअल में नहीं है। कई बार शो ऑफ होता है ना, कुछ बच्चे बहुत शाइनिंग मारते रहते हैं, एक्चुअली उतने इंटेलिजेंट होते नहीं है लेकिन शाइनिंग मारने का काम करते हैं सर, शो ऑफ करते हैं। दैट शो ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों,
आप है ना कभी भी किसी भी बैंक की ऐड दिखेगा, किसी भी बैंक के एडवर्टीजमेंट में है ना, वो आपको हमेशा ये बताएंगे कि उनके पास कितने के डिपॉजिट्स है, कितने अमाउंट के डिपॉजिट्स है, ठीक है। सो बैंक के ऐड में आपको दिखेगा 500 करोड़ के डिपॉजिट्स हमारे पास है, ठीक है, 700 करोड़ के डिपॉजिट्स है, 900 करोड़ के डिपॉजिट्स, 1000 करोड़ कड़े वाटसाल, ऐसे हमेशा कोई भी बैंक दिखेगा, हमेशा उसके ऐड में आपको ये दिखेगा कि उनके पास कितने करोड़ के कितने डिपॉजिट्स है। इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। मुझे एक बात बताइए भला, हम जो बैंक में एफडी करते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, बराबर है। हम जो बैंक में एफडी करते हैं सर वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे लिए इट विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। लेकिन जो पैसा हमने बैंक के पास एफडी के रूप में रखा हुआ है वो बैंक के लिए क्या है सर? वो बैंक के लिए क्या होती है? हम तो जब चाहे तब वो एफडी को मैच्योर करके पैसा ला सकते हैं। मतलब जब हम मांगने को जाए बैंक को तो बैंक को हमको देना पड़ेगा। तो जो हमारी बैंक में एफडी है, जो हमारा बैंक में डिपॉजिट है, जो हमारा असेट है, वो बैंक का क्या है? वेरी गुड सर, वेरी गुड। गायत्री, यश, सुमित, अंकिता, महन, विशाखा, साक्षी, प्रतीक्षा, ये क्या है सर? बैंक की लायबिलिटी है सर। इस धरती पर की एकमात्र बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लायबिलिटी बता के धंधा करती है। हम क्या बताना चाहेंगे लोगों को? हमारी लायबिलिटी। अरे नालायकों, अगर हमारे पास 700 करोड़ के डिपॉजिट्स है, इसका मतलब ये है कि 700 करोड़ रुपए देना है मुझको लोगों को। अगर 900 करोड़ के डिपॉजिट्स है, 1000 करोड़ के वाटसाल सर ऐसा हम लिखते हैं, तो इसका मतलब सर 900 करोड़ की लायबिलिटी है ना मेरी। तो हम तो लायबिलिटी बता के धंधा कर रहे हैं सर। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास 900 करोड़ की एफडी है, हमारे पास 1500 करोड़ की एफडी है, इसका मतलब ये है कि सर इतना लोगों का हमारे ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। इतना पैसा हमारे पास है, मतलब लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। आपके पास 200 करोड़ की एफडी नहीं, हमारे पास 1000 करोड़ की एफडी है, मतलब वी आर मच ट्रस्टवर्दी। इसीलिए बैंक हमेशा चाहती है कि उसकी ये जो एफडी की अमाउंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। वो क्या चाहते हैं? हमेशा इस एफडी को हमेशा बढ़े सर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए रहे, ये हमेशा बैंक चाहती है। अब इस चक्कर में बैंक वाले क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एंड व्हाट इज़ दैट विंडो ड्रेसिंग इज। अब ये 500 करोड़ की जो एफडी होती है सर, ये कौन से तारीख की होती है? ये होती है सर आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड की। सो मान लीजिए दिस इज द 500 करोड़ का एफडी एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। अब बैंक्स वाले क्या खेल खेलते हैं मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली इन द लास्ट 15 और 10 days ऑफ ईयर एंड, बैंक मैनेजर्स जो होते हैं सर, हर बार नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हो जाता है ये। बैंक मैनेजर को मालूम होता है, बैंक के पास सर डेली ट्रायल बैलेंस बनता है, बैंक को मालूम होता है उनके पास के डिपॉजिट्स कितने हैं। और बैंक क्या करती है फिर आखिरी 10 दिन में बहुत सारी एफडीज है ना लोगों से कलेक्ट करती है। और ख़ास करके बैंक के जितने भी कस्टमर्स होते हैं जिनके बैंक में ओडी अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, बैंक उन सारे बोरोस को कहती है भाई साहब आप हमारे पास एफडी कीजिए। हमने आपको 10 लाख का सीसी सैंक्शन किया है ना, चलिए आप हमारे पास है ना 1 लाख रुपए की एफडी कीजिएगा। भाई आपको मैंने हाउसिंग लोन दिया है ना 10 लाख रुपए का, 50 लाख का हाउसिंग लोन दिया है ना, चलो आप मेरे पास है ना लाख रुपए की एफडी कीजिएगा। तुम 2 लाख की एफडी करो, तुम 5 लाख की एफडी करो। बैंक ऐसी एफडीज उनसे करवाती है। और बैंक कहती है भाई साहब प्लीज़ सुनो ना, करो ना 5 लाख की एफडी। और क्या करो, 28 मार्च को एफडी करो, 3 अप्रैल को लेके जाओ पैसा। 28 मार्च को एफडी कर दो, 3 अप्रैल को लेके जाओ, मैच्योर करो ना, 7 दिन के लिए करो ना हमारे पास एफडी। तो होता क्या है कि बहुत सारे बिजनेसमैन जिसने बैंक से लोन लेके रखा है, वो बिजनेसमैन भी सोचता है यार इस बैंक ने मुझको 10 लाख का सीसी दिया हुआ है, अगले साल मुझे मैनेजर से 10 लाख का लिमिट बढ़ाकर 15 लाख करने का है। तो आज मैनेजर मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि 3 लाख रुपए की एफडी करो। और कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए सिर्फ, फॉर 7 days। तो बिजनेसमैन सोचता है यार अगर आज मैं मैनेजर की हेल्प कर दूंगा, 3 लाख की एफडी कर दूंगा, तो आगे मैनेजर को भी मैं बोलता हूँ क्या साहब आपने बोला करके एफडी किया, फिर हमारे लिमिट बढ़ा के दो ना। तो सर ये सब एक दूसरे के क्या होता है सर, एक दूसरे के सब क्या होता है सर, ये वेल विशर्स कह सकते हैं इसको। तो बहुत सारे बिजनेसमैन इच्छा रहो ना रहो सर छोटी मोटी एफडी कर देते हैं। और बैंक मैनेजर क्या कहते हैं आपसे, 7 दिन की एफडी करो ना सिर्फ।
नहीं 28 को, 29 मार्च को करो, अरे 30 मार्च को तो करो कम से कम, पर 4 अप्रैल से 3 अप्रैल को लेके जाओ। क्या सर उसका इंटेंशन है यहाँ पर? सर हिज इंटेंशन इज वेरी क्लियर, उसको 31 मार्च को अपनी एफडीज का आंकड़ा बढ़ा के दिखाने का है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 मार्च को एफडी 500 करोड़ की दिखनी चाहिए। सर 1 अप्रैल 2 अप्रैल को क्या हुआ ये किसने पूछा आपको? 28 मार्च को 29 मार्च को कितनी एफडी थी ये थोड़ी ना आपको लोगों को बताना है। आपको तो आपके एनुअल रिपोर्ट में 31 मार्च की एफडी का आंकड़ा दिखाना है, और वहां जो आंकड़ा दिखाना सत्यम जैसा नहीं करना है, वो एक्चुअली हमारे पास एफडीज होनी चाहिए। मतलब हमारे पास हो सकता है सर 27-28 मार्च को हमारे पास सिर्फ 400 करोड़ की एफडीज रहे, और ऐसी 2 लाख 5 लाख 10 लाख कर करके हम लोग 31 मार्च को 500 करोड़ पे आ जाए, और अगले 3 दिन में फिर से 100 करोड़ की एफडी चली जाए हमसे। लेकिन 31 मार्च को हमारे पास है ना सर 500 करोड़ की एफडी, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हम बुक्स में दिखा सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में एफडी है क्या हमारे पास? नहीं। दिस इज अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, आई टेल यू सर, दिस इज अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, लेकिन सर है ना वहां पर। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ विंडो ड्रेसिंग इज, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करना। 28 मार्च की एफडी अलग है सर, अगले 3 अप्रैल की एफडी अलग है, लेकिन 31 मार्च को हमारी एफडी 500 करोड़ की है। सो वी आर शोइंग द थिंग्स विच इज नॉट प्रेजेंट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ विंडो ड्रेसिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे विंडो ड्रेसिंग हमारा पार्ट नहीं था डिस्कशन का, बट फ्लो में आ गया सर, समझा दिया मैंने आपको। क्लियर सर? इसे कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग, द थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट एंड ट्राइंग टू शो ऑफ। एनीवे सर, और क्या होना चाहिए सर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में? फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, एंड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट। सर इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, सब टाइम पास वाला इश्यू है, सब पॉलिटिकल आंसर्स हैं, ठीक है, सिंपल सर। आगे बढ़ते हैं। Now what are the limitations of financial statement? What are the limitations of financial and accounting statement sir? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या लिमिटेशंस है? द फर्स्ट वन इज अ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है? सुनिए सर, डेप्रिसिएट हम करते हैं एसेट को, बराबर ना, फिर आप कहते हैं सर एसएलएम भी चलेगा, फिर आप कहते हैं डब्ल्यूडी भी चलेगा, आप कहते हो सर मशीनरी रेट भी चलेगा, आप कहते हो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी चलेगा, आप कहते हो सर सिंकिंग फंड मेथड भी चलेगा। मतलब एक सिंपल सी डेप्रिसिएशन के लिए एक बोलो ना क्या चलेगा? अरे भाई अगर कोई एसएलएम यूज करेगा तो उसका डेप्रिसिएशन अलग होगा, सेम मशीन के लिए कोई डब्ल्यूडी यूज करेगा तो उसका रेट अलग होगा, उस सेम मशीन के लिए अगर कोई मशीनर मेथड यूज करेगा तो उसका डेप्रिसिएशन अलग होगा। इट मीन्स यू आर परमिटिंग दी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, और कहते हो वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सर आप कहते हो वेटेड एवरेज मेथड भी चलेगा, आप कहते हो फीफो भी चलेगा, धन्यवाद आपको कि आप कहते हैं लिफो नहीं चलेगा। सर लेकिन जब एक चीज है सर, जब स्टॉक अगर वैल्यूएशन करना है तो फिर एक दो ना, आइदर गिव फीफो और गिव वेटेड एवरेज, बट वी आर गिविंग बोथ द ऑप्शन। सो अल्टरनेट पॉलिसीज आर अवेलेबल, एंड ड्यू टू अल्टरनेट्स आर अवेलेबल सर फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू दैट एक्सटेंट बिकम्स नॉन कंपेरेबल। This is what the limitation of your financial statement. So different accounting policies. So if two organizations follow different accounting policies, then it is not possible to compare financial statement of two entities. ठीक है? If the same organization follow different accounting policy over 2 years, पिछले साल SLM, इस साल WDV, पिछले साल weighted average method, इस साल FIFO. So if same organization follow different accounting policies over 2 years, then the financial statement is not comparable, as a different accounting policy produce different results. Got it? ये limitation है सर, बावजूद इसके ये allowed है। Records only सर monetary transaction। फिर से वही बात सर, कई सारी नॉन मॉनेटरी चीज़ें ऐसी होती है सर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, काम की होती है, लेकिन केवल उसे पैसे में नहीं होती है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। डेडिकेटेड लेबर फोर्स, टैलेंट ऑफ एम्प्लॉय, टैलेंट ऑफ ओनर, उसका थिंकिंग, उसका विजन, सर इसको रुपए पैसे में काउंट नहीं होता। बावजूद सर विजन पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, बट विजन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। सो दिस इज अगेन द लिमिटेशन, रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर्स इंटेंजिबल नॉन मॉनेटरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस as it records only monetary transaction. Non-monetary strength, that is the loyalty and efficiency of labor, hard work of owner, etc.
नॉन मॉनेटरी वीकनेस सर, नॉन मॉनेटरी वीकनेस मतलब पुअर मैनेजमेंट, इंटरनल डिस्प्यूट, स्ट्राइक, लॉकआउट, कंपटीशन। सर कंपटीशन का कितना बड़ा थ्रेट होता है हमारे बिजनेस के अंदर, लेकिन उसको रिकॉर्ड पे लाते ही नहीं है सर, क्योंकि वो पैसे में नहीं आता। दिस इज वॉट द लिमिटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मेरा लिमिटेशन है। देन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इज माय लिमिटेशन। देन असेट रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। सर ये मैंने आपको बताया था कि मेरी 5 लाख की जो लैंड है और जो मेरी 25 लाख की लैंड है, बावजूद इसके कि ये 5 करोड़ की लैंड आज 2 करोड़ का वैल्यूएशन है और ये 25 लाख की लैंड आज इसका वैल्यूएशन कितना है, 27 लाख है, लेकिन फिर भी दिखने को तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि जैसे आपने भी कहा था सर, ये जो 25 लाख की लैंड है सर, ये ज़्यादा बड़ी लैंड है। हकीकत वो नहीं है सर। हकीकत ये है कि ये लैंड काफ़ी पुरानी है और ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली लैंड है, इसलिए 5 लाख की लैंड की आज की एक्चुअल वर्थ 2 करोड़ रुपए की है। लेकिन सर मैं बैलेंस शीट में आज भी उसको कितने में दिखाता हूँ, 5 लाख में दिखाता हूँ, शोइंग एट इट्स कॉस्ट। सो हाउ आई कैन से माई बैलेंस शीट शोज द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन, हाउ आई कैन से माई असेट्स आर एट इट्स, ये करेक्ट पोजिशन दिखाता है, इसका करेक्ट वैल्यू दिखाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये लिमिटेशन है, बावजूद इसके स्टिल वी फॉलो 5 लाख, वी स्टिल वी फॉलो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए सर, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हैं, हम उसके एडवांटेजेस को तो छोड़ नहीं सकते। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज अ फ्री फ्रॉम ऑल बायस, है ना, इसलिए हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही फॉलो करते हैं। हाँ, हालांकि उसका कुछ लिमिटेशन जरूर है। ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट, कंपेरिजन बिटवीन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 एंटिटीज स्टार्टेड ऑन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको ए और बी का एग्जाम्पल दिया था, आपको दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने 2000 में स्टार्ट किया, एक ने 2020 में स्टार्ट किया, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ए ने 2000 में स्टार्ट किया, बी ने 2020 में किया, तो सर जो कैपिटल अमाउंट लगा वो 2000 में बहुत कम लगा, 2020 में बहुत ज़्यादा लग गया, तो उनका परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं हो सकता। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर। ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट, कंपेरिजन बिटवीन financial statement of 2 entities started on different point of time is not possible. If the another option of realizable value is used, then it is a costly as well as estimation of exact amount is not possible. ये इससे रिलेटेड पॉइंट आ गया सर। ये if we show the asset at its realizable value, okay, then perpetual continuity and periodical statement. Firms are treated as going concern, but statements are prepared periodically. Due to above problem, it is difficult to classify between capital and revenue expenditure. It leads to difficulty in making accurate books of accounts. Truly speaking, sir, ये जो हमारा prepaid and आउटस्टैंडिंग वगैरह जो होता है ना, ये उतना इजी नहीं होता है कैलकुलेट करना जितना हम लोग आपको एकेडमिक लेवल पे दिखाते हैं। इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून सर, आपने कभी देखा आपके एकेडमिक में आपके बुक्स के अंदर कि इंश्योरेंस पेड अप टू 12 जुलाई, इंश्योरेंस पेड अप टू 28 अगस्त, इंश्योरेंस पेड अप टू 9 सितंबर, ऐसा कभी नहीं देते ना। आपको सिर्फ कैलकुलेशन कर देंगे, ऐसा देते हैं। रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है कि 1 अप्रैल कुछ भरा जाएगा, 1 जुलाई कुछ भरा जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो बीच में भी हो सकता है सर, तो उसका कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर डे वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको फिर इग्नोर भी कर देते हैं। दिस हैपन्स सर, ठीक है। इट लीड्स टू डिफिकल्टी इन मेकिंग एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। देन मैनेजमेंट पॉलिसी। कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने यूज करनी चाहिए सर, ये मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है। सो मैनेजमेंट पॉलिसीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। समटाइम मैनेजमेंट में डिसाइड दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट टू अवॉइड टैक्सेस। इन दिस केस, ड्यू टू मैनेजमेंट पॉलिसी, एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। और ये बहुत बार होता है सर, हम लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट कमाए,
हम लोग चाहते हैं कि हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो, लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि हम लोग टैक्स भरें। और हमको टैक्स नहीं भरना है तो हम लोग क्या करेंगे सर? टू हाइड द टैक्स विल मैनिपुलेट सम पॉलिसीज इन सच वे सो दैट इन स्पाइट ऑफ देयर इज अ अच्छा वी नेवर शो द प्रॉफिट in order to reduce tax burden. ठीक है? Sometime management may decide that profit should not be beyond a specified limit to avoid taxes. ठीक है? In this case, due to management policy, accurate financial statement cannot be prepared. Or in other case, management may decide that profit should be disclosed higher than the actual profit to apply for loan or other benefit. And due to such management policy, accurate financial statement cannot be prepared. अब यहाँ पर उल्टा हो गया। अब बहुत कम होता है सर, लेकिन पहले ना, आज से कम एक 10-12 साल पहले लोगों के ना 3 बैलेंस शीट बनने के, 3 बैलेंस शीट सर, एक ही बिजनेस के एक ही साल के 3 बैलेंस शीट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए अलग बैलेंस शीट, वैट डिपार्टमेंट को देने के लिए अलग बैलेंस शीट, और बैंक वाले को देने के लिए अलग बैलेंस शीट। अब इनकम टैक्स के लिए जब बैलेंस शीट बनेगा तो इन दैट केस सर इनकम को कम दिखाया जाएगा ताकि टैक्स कम भरना पड़े। वैट को देते हो सर सेल्स और परचेज की में गड़बड़ी की जाएगी सो दैट हमको वैट कम भरना पड़े। लेकिन जब बैंक को देना है तो सेल्स को भी बढ़ाएंगे, परचेज को भी बढ़ाएंगे सर, इनको भी बढ़ा के दिखाएंगे ताकि बैंक को लगे कि हाँ यार हमारी पोजीशन बड़ी अच्छी है और उसके बेसिस हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले। अब ये बहुत कम हो गया सर, क्योंकि क्या हो चुका है कि अभी आपका पैन की वजह से ना अब सारा इंटरलिंक हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, टू सम एक्सटेंट बैंक वाली इंफॉर्मेशन ये कहीं की पकड़ में आ जाती है। लेकिन पहले इस तरह के बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग बैलेंस शीट, एक क्लाइंट के एक साल के 3-3 फाइल बनते थे, अब ऐसा बहुत कम हो गया। ठीक है, एनीवे सो मतलब क्या है सर, इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या दिखाना है, आपको प्रॉफिट कम दिखाना है कि ज़्यादा दिखाना है, उसके हिसाब से भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये हमेशा खतरा होता है सर। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइन, सो यहां से हमारा पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 को हम लोग फिर अभी रुक जाएंगे सर। ठीक है, सो ये हमारा पार्ट 2 जो था इसमें मेजॉरिटी रूप से सर हमारा बेसिक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, देन characteristics of your financial statement and limitations of your financial statement and accounting assumptions, ये वाला पार्ट हमारा डिस्कस हो गया। सो बच्चा लोग हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और इन द नेक्स्ट सेशन, अगला सेशन हमारा बहुत छोटा रहेगा। अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, बट अगले सेशन में हम लोग एएस की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, हल्का फुल्का एक 10-15 मिनट का काम सिर्फ एएस के ऊपर करना है। और एक पार्ट हमें डिस्कस करना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, एक छोटा सा पार्ट, सब मिला के आई गेस 1 घंटे का पार्ट हमारा रह गया। बट आई विल स्टॉप हियर, ठीक है, एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच एंड विल स्टॉप हियर, बाय बाय।